Assalamu alaikum students. Today we have to start unit number 3, periodic table and periodicity. In this unit, first of all, we are going to study about the history of the development of the periodic table. About 350 before Christ, Aristotle discovered there are only 4 elements in this universe, which are fire, water, air, and earth. And by 1700, 14 elements were known. And by 1789, Antony Levisius wrote the first extensive list of the 33 elements. In 1829, John de Brenner, German chemist, noticed that bromine, chlorine, and iodine had similar properties and that bromine's atomic mass was between that of chlorine and iodine. He found the 3 other groups with similarities. He called these groups triads. He noticed that atomic weight of the strontium was halfway between the weight of the calcium and the barium, and these elements also possess the same chemical properties. And by 1829, he had discovered the halogen triad, which we already discussed, which is made up of chlorine, bromine, and iodine. And after that, he discovered the alkali metal triad of lithium, sodium, and potassium. Here I have listed all the triads of the de Brenner: chlorine, bromine, iodine, calcium, strontium, barium, sulfur, selenium, tellurium, lithium, sodium, and potassium. In all the triads, सेंट्रल मेटल जो है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास था वो एवरेज था इन दोनों के एटॉमिक मास पे. ये इस तरीके से जो है वो इसने de Brenner ने 3 एलिमेंट्स के, ट्राई मीन्स 3, 3 एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप्स अरेंज किए जिसको जो है उसने ट्राइएड का नाम दिया. Now, what were the drawbacks or defects of the de Brenner triads? Only a few elements could be arranged in this way. सिर्फ चंद एलिमेंट्स थे जिनको इस तरह से वो ट्राइएड्स की फॉर्म में रख सकता था. सारे एलिमेंट्स को ट्राइएड्स की फॉर्म में नहीं रखा जा सकता था. That's why this classification didn't get wide acceptance. In 1864, John Newland, he was an English chemist, arranged the now known 62 elements from lightest to the heaviest. He also noticed that every 8th element had similar physical properties, similar chemical and physical properties, and their properties were repeating. This became known as Newland's law of octaves. Octa means 8. हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा था. तो यही चीज़ जो है ऑब्जर्व की थी उसने 62 एलिमेंट्स में, कि हर 8th एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा था. तो इसी वजह से उसको से लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया. यहाँ पे एक ऑक्टेव शो की गई है, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. सिमिलरली जो है एक सेकेंड ऑक्टेव्स जो है वो शो की गई है. Here is the table of the periodic table of the 1866 Newland octave. न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल की ख़ास बात ये थी कि न्यूलैंड ने जो अपना पीरियोडिक टेबल था, he arranged this periodic table on the basis of the musical notes. म्यूज़िकल नोट्स की जिस तरह से अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो उसने न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया. What are the drawbacks? His work couldn't get much recognition because no space was left for the undiscovered element. कुछ elements बाद में भी discover हुए, तो उसको कहाँ पे रखा जाए इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया था. और ये हमारे पास ये प्रॉब्लम कब रेज हुआ, क्योंकि आफ्टर द न्यूलैंड जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस न्यूलैंड ने जब टेबल बनाया तब नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी. आफ्टर दैट नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड लेटरली. तो वो जो है नोबल गैसेस के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो उनकी जो जगह जो है वो
कहाँ उसे रखा जाए इसके बारे में न्यूलैंड ने कुछ नहीं बताया। 1869 में डिमिट्री मेंडलीव, रशियन केमिस्ट, organized the elements by atomic mass also, but made it into table form to help his students. Elements with similar properties were put into the same column. अब किस तरह से उसने अरेंज किया? उसने अकॉर्डिंग टू द मास, अटोमिक मासेस के लिहाज से अरेंज किया। और ये जो अरेंजमेंट थी उसने तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो उसने एक ही कॉलम में रखे जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। Mendeleev is considered as father of the modern periodic table. He left blanks where elements seem to be missing. अब ये इसकी सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट थी, जो कि ड्रॉबैक था न्यूलैंड का, कि उसने न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स की जगह नहीं छोड़ी। तो मेंडलीव ने इस तरह से परसीव किया, उसने ना सिर्फ जो है जो जितने एलिमेंट्स उस वक्त मौजूद थे उसको अरेंज किया, बट ही प्रिडिक्टेड देयर शुड बी सम न्यू एलिमेंट्स। उसने न्यू एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन भी की और उनकी जगह भी जो है वो पीरियोडिक टेबल में छोड़ी। दिस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। They were the places where heavy elements were put before the lighter element because of the properties. अब कुछ ऐसी जगह पे थी जहाँ पे हैवी एलिमेंट्स जो हैं वो लाइटर से पहले आ गए, और ऐसा क्यों था? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो उसके लिहाज से डिफरेंट थी। He felt the mistake was in measuring the mass and this would be corrected with further research. अब एक तो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया कि न्यू एलिमेंट्स होने चाहिए, उसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है। और सेकेंडली कैनिजारो ने उस वक़्त जो मासेस जो हैं फाइंड किए थे, उसने कुछ एलिमेंट्स के कहा कि मास जो हैं वो सही फाइंड आउट नहीं हुए। मीन्स कि उसने पॉइंट आउट किए कि मिस्टेक्स हैं मास की मेजरमेंट में भी, तो दे शुड बी करेक्टेड। तो इसमें जो है उसने करेक्शन की। तो ये जो है वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, जिसको जो है वो बाद में ट्रांसलेट करके जो है वो ठीक तरीके से लिखा गया। अब मेंडलीव ने के पीरियोडिक टेबल ने जो लॉ जो है वो अराइज होता है, विच इज़ कॉल्ड द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, which is properties of elements are periodic function of their atomic mass. एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। दिस इज कॉल्ड द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री, कि जहाँ पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो एक फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट थी एलिमेंट्स को अरेंज करने में। तो इसने जहाँ पे बहुत सारी न्यू एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन की, उसके साथ साथ एटॉमिक मासेस में जो मिस्टेक्स हैं उसको भी पॉइंट आउट किया। तो इसके साथ साथ इसमें कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स भी थे। पहला क्या था? हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है, हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, isotopes are the elements with which have same atomic number but they differ in their atomic mass. atomic number तो उनके सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो डिफरेंट है। अब जब एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया आइसोटोप का, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन, हमने पढ़ा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। तो तीनों की तीन, तो हाइड्रोजन ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 3 जगह ले गई। वो 3 दफ़ा हम हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में 3 दफ़ा हाइड्रोजन लिखेंगे, एक ही एलिमेंट को 3 दफ़ा लिखा जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किए गए थे मास की बेस पे। तो प्रोटियम का मास 1 था, ड्यूटियम का 2 था, ट्रिटियम का 3 था, लेकिन थे तीनों ही हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो है वो एक ही एलिमेंट्स, अब जैसे कुछ एलिमेंट्स थे जिनके आइसोटोप्स 5 थे, उनको 5 दफ़ा लिखा गया। कुछ एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप 11 थे, उनको 11 दफ़ा लिखा गया। तो दिस काज इरिटेशन एंड रेपिटेशन इन दी रेपिटेशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो ड्रॉबैक था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। और दूसरी बात के रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक masses of the some elements suggested that atomic mass of an element could not serve as the basis for the arrangement of the element. दूसरी बात मेंडलीव ने खुद ही पॉइंट आउट कर दी थी कि कुछ जो है वो कुछ पॉइंट्स पे एटॉमिक मासेस गलत हो सकते हैं।
तो उसके साथ साथ अब लेकिन सही क्या है उस वक्त उसे नहीं पता था, लेकिन जो भी उस वक्त अवेलेबल था डाटा उसके अकॉर्डिंगली उसने मासेस को अरेंज कर दिया। तो ये भी साइंटिस्ट ने एक बात सोची कि मासेस जो हैं वो एक्यूरेटली डिटर्मिन नहीं है, तो इसलिए हम एटॉमिक मास को जो है वो यूज़ नहीं करते पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में। 1930 में क्या हुआ कि हेनरी मोजले हैं, ही इज़ एन इंग्लिश केमिस्ट, अरेंज द एलिमेंट्स बाय एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कवर की हेनरी मोजले ने, और दिस गिव राइज टू अ न्यू पीरियोडिक लॉ। अब इसके साथ ही एक नया पीरियोडिक लॉ आ गया। वो क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहले मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और अब है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है उसको कंसिडर किया जाता है इट इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मास, because atomic number of every element is fixed and it increases regularly by 1 from element to elements, and no two elements can have the same atomic number. जिस तरह से हर इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से डिफरेंट है, एक आपका आइडेंटिटी मार्क है योर फिंगरप्रिंट, सिमिलरली जो एटॉमिक नंबर है वो ईच एलिमेंट का डिफरेंट है फ्रॉम अदर एलिमेंट। एटॉमिक मासेस तो दो एलिमेंट्स के सेम हो सकते हैं, ठीक है, बल्कि एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एटॉमिक मासेस रख सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है, ठीक है, और ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, और इसके साथ साथ वो रिपीट भी नहीं हो सकता। तो ये इस तरीके से जो है एक बड़ा जो है वो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर जो है वो डिस्कवर हो गया था, जिसकी बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पे। बाद में भी जो है मोजले के बाद में भी इसमें जो है टाइम गुजरने के साथ साथ बहुत सारी चेंजेस आती गई। Right now, this is the periodic table of the elements which is used for studies. In next lecture, inshallah students, we will learn about the features and characteristics of this periodic table. Thank you.